Dear students of class 10th, today I am going to teach you the first lesson of your English literature book, A Letter to God. ईश्वर को पत्र, written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes, जिनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेस फुएंटेस. He was a Mexican novelist, poet and journalist. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. In his youth, he spent much time in his father's general store, where he came in contact with the Indian farmers and laborers of the region. In 1921, he began writing for the Il Universal under the pseudonym of Tulio F. Pacinez. Dear students, first of all, we should know about the author. The author of the story, A Letter to God, is G.L. Fuentes. The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. यह जो कहानी है यह ईश्वर में अगाध विश्वास के विचार की चारों तरफ घूमती है. इसमें एक बहुत ही परिश्रमी किसान है जिसका नाम है लेंचो, जो कि वह प्रतिदिन अपने खेत के पास जाता है और बड़ी ही नज़दीकी से अपने फसलों को देखता है और यह देखता है कि फसल पकने वाले हैं और उन्हें एक हल्की बारिश की आवश्यकता है. और इस विषय में वह सोचता ही रहता है कि उत्तरी पूर्वी दिशा से हवा के झोंके के साथ वर्षा प्रारंभ हो जाती है और उस वर्षा का उसके फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से उसे अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ें और जानें. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house माने लेंचो का घर. The only one in the entire valley, पूरी घाटी में केवल लेंचो का ही एक घर था जो sat on the crest of a low hill, जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? चोटी. इंटायर मीन्स क्या होता है?
इंटायर मीन्स होता है होल, संपूर्ण। फ्रॉम दिस हाइट माने उस चोटी की ऊंचाई से, वन कुड यानी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और उस डॉटेड विद द फ्लावर्स और पकते हुए अनाजों के खेतों को जो कि फूल से लदे हुए थे, एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट और जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे, वह उस चोटी से देख सकता था। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड केवल एक ही चीज जो पृथ्वी को जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर एक बौछार की, एटलीस्ट अ सोवर केवल एक वर्षा की या कम से कम एक बौछार की। सोवर मीन्स क्या होता है? बौछार। डाउनपोर मीन्स एक वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट होल, WHOLE, होल मीन्स पूरा, थ्रू आउट मीन्स पूरा। द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स जो अपने खेतों को न्यू जानता था, इंटीमेटली बड़ी नज़दीकी से, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई जो केवल आकाश की तरफ ही देखता रहा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की तरफ वह देखता रहा और कुछ नहीं किया। नाउ वी वर really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Now we were really going to get some water, woman. वह औरत से कहता है कि अब हमें वास्तव में कुछ ही पानी प्राप्त होगा। The woman who was preparing supper replied. औरत जो कि खाना बना रही थी वह उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की जैसी इच्छा हो। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल दी स्मॉलर वंस, और छोटे बच्चे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, बच्चे खेल रहे थे जब तक कि औरत उन बच्चों को अपने पास ना बुलाती। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, यानी रात्रि के भोजन के लिए जब तक वह औरत उन बच्चों का ना बुलाती, तब तक छोटे बच्चे उस घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का ही समय था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक जैसे ही
लेंचो भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और बादल की पहाड़ी, यानी इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों की विशाल विशाल पहाड़ जैसे बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी ही स्वच्छ और तरोताज़ा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया था, बल्कि और किसी कारण से नहीं। When he returned, he exclaimed, जब वह वापस आए तो उन्होंने बताया, These are not raindrops falling from the sky, ये आकाश से गिरते हुए पानी की बूंदें नहीं थी। They are new coins, वे नए सिक्के थे, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हैं ये 10 सेंट की हैं, और लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं, जो छोटी बूंदें हैं, ये 5 के सिक्के के जैसे हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से पढ़ेंगे। आप लोग इसको दोहराइएगा, एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू।